Hello students, good morning to everyone. Okay, so as you already know, because we are continuing with the same topic that we are discussing in last class, so you already know कि algae की जहाँ तक बात है, algae is divisible into three types on the basis of pigmentation or predominantly present pigment in it, or you can say its appearance in general, right? So if you divide algae on the basis of appearance, okay, you can divide it into three different groups that we have described already in last class. Which three groups? So you see green algae, that is chlorophyceae, red algae, rhodophyceae, and in between brown algae, that is phaeophyceae. Okay, then what is the pigment that is responsible for providing algae its color is the very important thing as far as question is concerned. Okay, so no doubt we are going to look at this particular fact in upcoming part of this lecture, and to see this we need to start with any one of them. So we are starting with green algae. As you can see, chlorophyceae is a biological name for green algae. Okay, chlorophyceae is green algae, and you can easily note the thing or take out the logic that green algae is green in color because dominant pigment present within it is chlorophyll. You already know because we have discussed in past about photosynthesis. You already know that chlorophyll is a green pigment. Okay, and as this particular pigment, that is chlorophyll, is present predominantly in these algae or algal members, the color or appearance of these algae is greenish, okay, or green in color. Okay, but this only fact is not sufficient to discuss about them. We need to discuss several other aspects of chlorophyceae, that is green algae, one by one. So let's start with the first thing written. What is written? Most of the species belonging to chlorophyceae are freshwater forms and very few are marine. ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जो क्लोरोफाइसी या ग्रीन अलगी को बिलोंग करते हैं वो आपको रिवर में, लेक में, पॉन्ड्स में, मतलब जहाँ फ्रेश वाटर बॉडीज है वहाँ मिलेंगे. सी, ओशंस या मराइन एनवायरनमेंट में इनका ऑकरेंस लिमिटेड है या कम है. देन plant body is unicellular like in chlorella or Chlamydomonas, or maybe multicellular branched and unbranched like in Spirogyra and Chara. ये हम पहले भी बोल चुके हैं कि क्लोरेला, सेंडेस्मस, Chlamydomonas, Chara, Spirogyra, all these are examples of spirulina, all these are examples of green algae, chlorophyceae. ओके, सो यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज मेंशन्ड है कि ग्रीन अलगी कैन बी यूनिसेलुलर लाइक क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला और मल्टीसेलुलर फिलामेंटस लाइक कैरा एंड स्पायरोगायरा. इज इट ओके? नाउ क्लोरोप्लास्ट कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स. अब ये बात जो है, ये फैक्ट इस कर्सर के वाले पॉइंट पे ध्यान दो कि डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट ग्रीन अलगी फॉर्म्स. ये बात हम कहाँ पढ़ चुके हैं, थोड़ा याद करो. हमने इस चीज को सेल में पढ़ा था. व्हेन वी डिस्क्राइब्ड सेल, यूकैरियोटिक सेल, एंड वी वर डिस्कसिंग प्लास्टिड्स इन दैट पर्टिकुलर सेल डिस्कशन. तो प्लास्टिड्स में हमने पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट के शेप्स वैरी करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ अलगी टू अदर. लाइक यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, वो वहाँ पे भी हमने लिए थे कि कप शेप्ड इन क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरल इन स्पायरोगायरा, प्लेट लाइक इन उलोथ्रिक्स एंड रेटिकुलेट इन उडोगोनियम. उडोगोनियम, स्पायरोगायरा, उलोथ्रिक्स, क्लैमाइडोमोनास, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन अलगी. ओके, एंड इन सभी में किसका शेप या फॉर्म अलग अलग है?
क्लोरोप्लास्ट का, कप शेप्ड इन क्लामाइडोमोनास, स्पाइरल इन स्पायरोगायरा, प्लेट लाइक इन ओलोथ्रिक्स, रेटिकुलेट इन उडोगोनियम. Pigment present are chlorophyll A and chlorophyll B along with carotenoids and phycobilins. Chlorophyce या green algae में कौन सा pigment predominantly present है? तो you see it is chlorophyll A and chlorophyll B जो उसे green color या green appearance provide करता है. And additionally there are carotenoids and phycobilins, no doubt. This is a known fact that all these pigments are working for fixation or entrapping light, and with the help of the trapped light energy, photosynthetic reactions are carried out. That means inorganic raw materials are converted into organic food. Okay, but what is the point to note? That chlorophyce or green algae has green color because predominantly the pigment that is present in highest concentration is chlorophyll and others are additional or secondary, right? That's the reason they are green in color. Okay, now this is the question material. Which combination of chlorophylls is present in chlorophyce or green algae? It is chlorophyll A and chlorophyll B. Okay, why I am saying this you will get to know in future further part of this lecture, क्योंकि तीन अलग अलग अलगी के प्रकारों में टाइप ऑफ क्लोरोफिल का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है. ग्रीन अलगी की जहां तक बात है, द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. इज इट ओके? देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जहां तक रिप्रोडक्शन की बात है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ग्रीन अलगी ऑकर्स बाय फ्रैगमेंटेशन. ओके, ये सिर्फ उन ग्रीन अलगी के लिए लागू होता है जो फिलामेंटस है, मल्टी सेलुलर है. ओके, फ्रैगमेंटेशन इज द मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction is occurring by formation of flagellated zoospores. देखो, zoospores वही है जो हमने फंजाई में पढ़े थे. ठीक, यहां पे भी वो जूस्पोर्स बनते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. कौन सी अलगी में? ग्रीन अलगी या क्लोरोफाइसी में. ठीक, वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय आइसोगैमी, अनिसोगैमी एंड ऊगैमी. अब इनको हमने डिटेल में यहाँ फिर से डिस्क्राइब इसलिए नहीं किया क्योंकि ये चीज हम फंजाई किंगडम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. व्हाट आर जूस्पोर्स, व्हाट आर प्लानोस्पोर्स, व्हाट आर जाइगोस्पोर्स एंड व्हाट नॉट. और ये भी पढ़ चुके हैं कि आइसोगैमी, अनिसोगैमी और ऊगैमी मतलब क्या. देखो फिर से एक बार बता रहा हूं, जब दो सिमिलर मॉर्फोलॉजी या साइज शेप वाले गमेट्स, मतलब मेल और फीमेल गमेट्स मॉर्फोलॉजिकली अगर सिमिलर हो, साइज शेप में सिमिलर हो और उनके फ्यूजन से जाइगोट तैयार हो, तो ऐसे फ्यूजन को हम आइसोगैमी कहते हैं. ठीक, जब देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन द साइज शेप एंड ओवरऑल मॉर्फोलॉजी ऑफ द गमेट्स, वी कॉल द फ्यूजन एज अनिसोगैमी. while when female gamete or egg is much larger than the male gamete, then the fusion between them is called oogamy. Clear? So in case of green algae or chlorophyce, the sexual reproduction can be isogamous, anisogamous or oogamous. That's what this point says. Then stored food is in the form of starch. As it is plant type, you logically can think why it is starch, because plants overall have starch as a stored form of carbohydrate, but it is green algae where starch is particularly present as stored food. In Phaeophyce, that is brown algae, and Rhodophyce, that is red algae, you will see something else. That's why it is question wise important fact. Stored food in chlorophyce or green algae is in the form of starch. Okay, and this starch as a stored carbohydrate within cells of green algae is present within specialized structures called pyrenoid bodies or pyrenoids. This is question material. Cursor की तरफ देखो. These pyrenoid bodies or pyrenoids
are specialized structures which contain starch granules within them, okay, which is acting as a stored food or stored carbohydrate in the cells of chlorophyce or green algae. Okay, now as the cells of green algae, particularly those green algae which are unicellular like chlorella, like Sandesmus, like Chlamydomonas, these are rich in protein, or large quantities of protein are present within these cells of green algae. Because of this fact, the cells or dried cells of unicellular green alga or even multicellular green alga is used as a source of protein as an what you say additional food for those who are suffering with protein malnourishment. ओके, जो लोग प्रोटीन की डिफिशियंसी से गुजर रहे हैं उनको प्रोटीन के सोर्स के तौर पे ग्रीन अल्गी के कुछ फॉर्म्स खिलाए जाते हैं. देयरफॉर इट इज रिटन दैट मेनी ग्रीन अल्गी आर रिच इन प्रोटीन, हेंस used as a source of protein and even as a food by space travelers. Okay, space travelers अपने साथ ग्रीन अल्गी कैरी करते हैं, उनके लिए वो फूड का काम करती है स्पेस में. इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की जहां तक बात है, ये पहले भी भाई कई बार हो चुके हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखे हुए मिलेंगे. क्लोरेला, क्लामाइडोमोनास, उलोथ्रिक्स, जिग्नेमा, स्पायरोगायरा, कैरा, वोल्वॉक्स, ये सब एग्जाम्पल्स जो रेड पार्ट में लिखे हैं वो सब ग्रीन अल्गी के कॉमन एग्जाम्पल्स है. ओके, नाउ second type of algae on the basis of its overall appearance, as it appears brownish in color, it is called brown algae or technically called Phaeophyce. जो बातें हमने ग्रीन अल्गी के लिए डिस्क्राइब की उसी लाइन पे डिस्कशन ब्राउन अल्गी या फियोफाइसी का भी होगा. देखो आप, वहां पे हमने कहा था ग्रीन अल्गी के लिए कि मोस्ट ऑफ द ग्रीन अल्गी इज फ्रेश वाटर एंड वेरी फ्यू आर मराइन फॉर्म्स. यहां पे क्या दिखता है, उल्टा. ब्राउन अल्गी इज मोस्टली मराइन एंड वेरी फ्यू आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स. ज्यादा से ज्यादा ब्राउन अल्गी आपको सॉल्ट वाटर या मराइन एनवायरमेंट्स में मिलेगी, with very few of them are present in fresh water bodies like river and pond. दूसरी चीज जो लिखी है कि सेल वॉल प्रेजेंट है, नो डाउट, और सेल वॉल में सेल्यूलोज होगा, इसमें भी नो डाउट. इन एडिशन टू सेल्यूलोज, बट इन ब्राउन अल्गी सेल्यूलोज के साथ साथ सेल वॉल हैज अदर कंपोनेंट्स लाइक फ्यूकन एंड अल्जीन. दीज आर सेपरेट chemical components, fucun and algine, which are present in addition to cellulose within the cell walls of brown algae, that is Phaeophyce members. Then देखो, मैंने कहा था तुमको कि क्वेश्चन वाइज क्लोरोफिल्स का कॉम्बिनेशन अल्गी में इंपॉर्टेंट है. तुमको ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन ग्रीन अल्गी और ब्राउन अल्गी और रेड अल्गी. तो आपको आंसर करना होगा लाइक कि कॉम्बिनेशन फॉर क्लोरोफाइसी और ग्रीन अल्गी इज A and B. Similarly, the combination of chlorophyls in brown algae is A and C. See this? Chlorophyll A and chlorophyll C are the type of chlorophylls that are found in brown algae. तो फिर क्वेश्चन आता है सर कि इनमें अगर क्लोरोफिल है तो ये ब्राउन क्यों है, ग्रीन क्यों नहीं, है ना. एक दो बातें यहाँ पे बोलूँगा मैं. क्लोरोफिल ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि क्लोरोफिल के बिना, खास करके क्लोरोफिल ए के बिना फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता, ये तुम जानते हो. यू ऑलरेडी नो द फैक्ट दैट क्लोरोफिल ए इज द प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. यू ऑलरेडी नो दिस, राइट. तो क्लोरोफिल तो रहेगा, लेकिन डोमिनेंटली प्रेजेंट पिगमेंट इनमें क्लोरोफिल की जगह कौन है, ये रहा, फ्यूकोक्सैंथीन. इट इज अ काइंड ऑफ कैरोटीनॉइड. ओके,
Fucoxanthin is a carotenoid pigment which is more dominantly present in the cells of Phaeophyce, because of which the overall appearance of these algae are brownish, as fucoxanthin is brown in color. So because of the fucoxanthin dominance, the members of Phaeophyce are brown in color, or they are called brown algae. Question आ गया, which of the following pigment is responsible for brown pigmentation in Phaeophyce members? Answer should be fucoxanthin. Or in other words, you can be asked, which of the following is the predominantly present pigment in the members of Phaeophyce? Answer should be fucoxanthin. Likewise, this is the another question, which of the following combination of chlorophylls are present in members of Phaeophyce? Chlorophyll A and chlorophyll C. Clear? Now, जहां तक हमने क्लोरोफाइसी के लिए कहा था कि members of chlorophyce stores the food in the form of starch. Here you can see members of Phaeophyce store the food in the form of starch, मैनिटॉल एंड लैमिनारिन. जरूरी है, ये सब पता होना चाहिए, जरूरी है, इसीलिए यहां पे हम मेंशन कर रहे हैं. स्टोर्ड फूड इन केस ऑफ क्लोरोफाइसी इज स्टार्च. टाइप ऑफ क्लोरोफिल्स इन क्लोरोफाइसी इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. क्लोरोफाइसी मेंबर्स आर मोस्टली एक्वेटिक और फ्रेश वाटर फॉर्म्स एंड वेरी फ्यू आर मराइन. अगर यही बातें तुम फियोफाइसी के लिए बोलो तो स्टोर्ड फूड इज स्टार्च, मैनिटॉल एंड लैमिनारिन. सिर्फ स्टार्च की जगह ये है दो एडिशनल. देन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर मराइन इंस्टेड ऑफ फ्रेश वाटर एंड वेरी फ्यू आर फ्रेश वाटर, मतलब उल्टा, राइट. एंड कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरोफिल्स इन फियोफाइसी इज ए एंड सी इंस्टेड ऑफ ए एंड बी. एंड एडिशनली यू कैन ऑल्सो से कि cell wall of chlorophyce contain only cellulose while Phaeophyce contains cellulose plus fucin and algine like things. Right? Now, body is not typical thallus, but it is differentiated into holdfast, stem like stipe and leaf like frond. देखो, हमने algae के लिए in general कहा है कि it do not possess root, stem and leaves. तो यहाँ पे भी देखो, कंफ्यूज मत हो. फियोफाइसी मेंबर्स या ब्राउन अलगी के मेंबर्स की जो ओवरऑल बॉडी है वो स्टेम जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर में, मतलब स्टाइप, लीफ जैसा लेकिन लीफ नहीं, जिसको कहते हैं फ्रॉन्ड, और अटैचमेंट के लिए होल्ड फास्ट, इन तीन हिस्सों में डिवाइडेड है. नीचे होल्ड फास्ट, ऊपर स्टाइप और उसके ऊपर फ्रॉन्ड. स्टाइप स्टेम जैसा है, फ्रॉन्ड लीफ जैसा है, स्टेम और लीफ नहीं है. ठीक, तो ये तीन टर्म्स होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड आर द थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर द बॉडी ऑफ मेंबर्स बिलोंगिंग टू फियोफाइसी और ब्राउन अलगी. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगेन ऑकर बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, asexual by flagellated zoospores, मीन्स सिमिलर टू दैट ऑफ क्लोरोफाइसी. और सेक्सुअल में भी सेम, आइसोगैमी, अनिसोगैमी एंड ऊगैमी. मतलब रिप्रोडक्शन के मामले में कोई चेंज वाला पॉइंट क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी के बीच नहीं है. बोथ हैव सेम थिंग्स एज फार एज रिप्रोडक्शन इज कंसर्न. ओके, नाउ नीचे एक एडिशनल चीज लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो. मेनी स्पीशीज ऑफ ब्राउन अलगी लाइक लैमिनारिया एंड सार्गैसम. सार्गैसम पहले भी मेंशन हो चुका है. तो लैमिनारिया और सार्गैसम आर यूज्ड एज फूड डायरेक्टली, while other members like ectocarpus and fucus, okay, ectocarpus and fucus are used to obtain hydrocolloids. अब hydrocolloids किन्हें कहते हैं? जिन substances में water को hold करके रखने की ability होती है उन्हें हम hydrocolloids कहते हैं. For example, algine. Algine is a kind of very important hydrocolloid that is obtained from members of Phaeophyce like Ectocarpus and Fucus, while other members like Laminaria and Sargassum belonging to Phaeophyce are used as food.
in particularly those countries which are Mediterranean, means what you can say कि समंदर के आजू बाजू जो कंट्रीज बसी हुई है वहाँ पे बहुत कॉमनली ब्राउन अलगी का इस्तेमाल एज अ फूड किया जाता है। ओके, और नीचे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लिखे हैं फियोफाइसी या ब्राउन अलगी के, जिन्हें आप पढ़ सकते हो। क्लियर? तो ये डिस्कशन जो है वो ब्राउन अलगी के लिए हमने किया। नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ अलगी remaining is rhodophyceae. Okay, but before that, here you can see some diagrammatic illustrations, okay, of green algae. Chlamydomonas, you see it is motile because it has flagella, it is unicellular. This is Chara, filamentous, branched. This is what? This is, see this is Oogonium, matlab egg containing part. This is Antheridium, मतलब sperm containing part. ओके, अब क्योंकि इनमें एग और स्पर्म है, इन्हें गमेटेंजिया कह सकते हैं हम, ऊगोनिया, एंथ्रीडिया। और ये रहा स्पायरोगायरा, फिलामेंटस, अनब्रांच्ड। ओके, और ये तीन एग्जाम्पल्स जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये तीनों किसके हैं? ग्रीन अलगी, क्लोरोफाइसी। ये यहाँ पे जो तीन एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, फ्यूकस हो गया, सार्गैसम हो गया, लैमिनारिया हो गया, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ओके, सी दिस इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ फियोफाइसी। देखो यहाँ पे होल्ड फास्ट, मतलब होल्ड करने के लिए होल्ड फास्ट। ये स्टेम जैसा, स्टेम नहीं है, स्टेम जैसा स्टाइप, और ये लिफ जैसा, लेकिन लिफ नहीं है, इसको लैमिना या फ्रॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये प्लांट जैसा दिखता है, बट ये प्लांट, सॉरी, मतलब ये टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट जैसा दिखता है, लेकिन ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट नहीं है, ये अलगी है, ब्राउन अलगी। देखो आप, ओवरऑल अपीयरेंस ब्राउन है, बिकॉज यू नो ऑलरेडी, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट फ्यूकोक्सैंथीन प्रेजेंट इन देम। ओके, नाउ ऑन द सेम लाइन्स देयर विल बी डिस्कशन ऑफ रोडोफाइसी। यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये भी एक्सक्लूसिवली मराइन है, फियोफाइसी के तीरा, और बहुत कम मेंबर्स ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरोफिल यहाँ फिर से चेंज हुआ, क्लोरोफाइसी के लिए AB था, फियोफाइसी के लिए AC हो गया, और रोडोफाइसी के लिए AD, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल D। बट फिर से वही बात, ये भी ग्रीन क्यों नहीं है, रेड क्यों है? बिकॉज इनमें रेड कलर का पिगमेंट कॉल्ड फाइकोइरिथ्रीन नाम हो चुका है ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस में। इट्स एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। फाइकोइरिथ्रीन इज द प्रीडोमिनेंट पिगमेंट इन द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी, बिकॉज ऑफ विच दे गेट देयर कलर। अब ये भी बता दूं कि ये सबसे ज्यादा डेप्थ में पाए जाने वाले अलगल फॉर्म्स है किसी भी वाटर बॉडी में। सबसे ज्यादा गहराई में अगर कोई अलगी मिलेगी तो वो है रेड अलगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम सेल्यूलोज, अब इनमें देखो, इनकी भी सेल वॉल में सेल्यूलोज कॉमन कंपोनेंट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पेक्टीन इज द अनदर कंपोनेंट प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। जैसे फियोफाइसी के मेंबर्स में एडिशनल कंपोनेंट था फ्यूकन एंड अल्जीन, यहाँ पे एडिशनल कंपोनेंट है पेक्टीन। स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। जो स्टोर्ड फूड है वो यहाँ पे कौन से फॉर्म में है? स्टार्च के फॉर्म में, लेकिन स्पेशली रेड अलगी के लिए इसे कहा जाता है फ्लोरिडियन स्टार्च। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहाँ पे भी फ्रेगमेंटेशन से होता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल जूस्पोर्स की जगह नॉन मोटाइल अप्लानोस्पोर्स से होता है, ये अलग बात। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज ऊगैमस, मतलब आइसोगैमी और अनीसोगैमी नहीं देखी जाती इन मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी और रेड अलगी। तो ये रिप्रोडक्शन के मामले में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए तो बाकी दोनों अलगी से सिमिलर है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर्स की जगह अप्लानोस्पोर्स, और सेक्सुअल में सिर्फ ऊगैमी, नो आइसो और अनीसोगैमी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मटेरियल रोडोफाइसी के लिए ये रहा, ये पॉइंट देखो। अगर पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो सुनो। अगर एक
जेल का नाम है, जिसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके टिश्यू कल्चर और माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरीज में बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। इसकी खासियत यह है कि इस अगार के पाउडर को, जो कि एक तरह की रेड अलगी से मिलता है, आपको नाम यहां दिख जाएगा, जेलिडियम स्पीशीज इज द स्पीशीज ऑफ रेड अलगी और rhodophyceae विच प्रोवाइड अस द कंपोनेंट कॉल्ड अगार अगार। इसको अगर हम गर्म पानी में उबालें तो अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये मेल्ट हो जाता है, मतलब घुल मिल जाता है पानी में। और जैसे जैसे ये ठंडा होता है, अबाउट 45 to 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये जेल फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो जो पानी है वो जेल में कन्वर्ट हो जाएगा इफ वी ऐड अगार अगार टू इट। तो होता क्या है, जब भी हमको बैक्टीरिया को या प्लांट की सेल्स को टिश्यू कल्चर के लिए लेबोरेटरी में ग्रो करना होता है, तो हम टेस्ट ट्यूब्स में, पेट्री प्लेट्स में जेल मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा जेल जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स डाले जाए। तो वो जेल बनाने के लिए अगार अगार इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए यहाँ लिखा है कि agar agar is a very important component in microbiology and tissue culture labs as it is used as solidifying agent and obtained from red algae, that is Gelidium species, a hydrocolloid obtained from red algae. Okay, important examples of rhodophyceae are like Gelidium, Chondrus, Porphyra, Polysiphonia, Batrachospermum, Gracilaria, etc. These are some विजिबल फॉर्म्स और एग्जाम्पल्स ऑफ रेड अलगी। अब यहाँ पे बैट्रैकोस्पर्मम को आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये तो ग्रीन दिख रही है, फिर वाइट इज रेड अलगी। तो ऐसा है कि रेड अलगी में अपीयर ग्रीनिश इफ इट इज प्रेजेंट इन द अपर रीजन्स ऑफ द वाटर बॉडी। जहाँ पे लाइट का अबंडेंस हो वहाँ पे रेड अलगी ग्रीनिश दिखाई दे सकती है, क्योंकि अबंडेंट लाइट की कंडीशंस में क्लोरोफिल की क्वांटिटी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे या जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, अलगी का ओरिजिनल कलर दिखता है जो भी उसका है, मतलब रेड, एज यू कैन सी इन ग्रासिलारिया एंड पॉलीसिफोनिया। ओके, दे आर, एज आई सेड, रेड अलगी इज प्राइमरीली प्रेजेंट इन द डेप्थ, not in the upper parts of the water body. Okay, and here you can see a complete compiled data about 3 groups of algae, that is Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. You can look at it for a while, okay, so that you can understand in at a glance. Okay, just have a look. Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae, green algae, brown algae, red algae, combination of chlorophylls, stored food, cell wall components, flagella presents or absents and normal habitat. तो इस चार्ट को भी अगर आप एक बार देख लोगे और इसको अगर आप पक्के से कर लोगे तो आपका एक कंपाइल्ड डेटा अबाउट अलगी विल बी प्रिपेयर्ड। ठीक, तो ये जो हमने अभी तक डिस्कशन किया, ओके, इस पर्टिकुलर क्लास में इट वाज अबाउट Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae, the 3 different types of division algae. Okay, in next lecture we will describe the another member belonging to kingdom Plantae, that is bryophytes and maybe pteridophytes. Let's see how it goes. Okay, the ultimate thing is we need to describe all 5 members with their details, and whatever things we are discussing here all have their own importance. So have a proper look at all of them and you should do it properly. ठीक, okay, and we are done with this lecture for now. Thank you.